Hello students, I welcome you to my YouTube channel ePolitical Science. Today I am going to discuss with you Forest Rights Act 2006. This is the background of the act and why this act is important. We need to understand, as far as Forest Rights Act is concerned, the full name of this particular act is the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act FRA 2006. तो ये यहाँ पे जो रिकग्निशन शब्द है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों इसको रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस संदर्भ में जंगल अधिकार को, कि क्या पहले इस अधिकारों को रिकग्नाइज़ नहीं किया गया था. So you have to read FRA in your laws, your rights, as well as in many papers जहाँ पे environment वगैरह पढ़ना होता है, और debates, current debates जो है UPSC and many other areas also, because it is connected with the environmental law and is very important, the contemporary idea of rights based approach of the state. So let us start and discuss that why Forest Rights Act is important, students. Okay, and I'm also going to provide you in the description box link to my mainstream article which was already published in 2013, and the title of the article is Right to Forest Land, Who Benefits, and it argues about the implementation of FRA in many states and the lacuna that is there, and after 2013 so many years have passed, still we find that most of the things are the same, and at the grassroots level things have not changed. Now, why forest rights? Why? First of all, relevance of forest and its use for tribal since time immemorial. बहुत समय से ये चला आ रहा है कि जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, इनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है जंगलों से, जंगलों की उत्पातों से और उनके पूरे उस इन्वायरमेंट से. नॉट ओनली द फिजिकल रिसोर्सेज बट ऑल्सो द इन्वायरमेंट विच इज़ देयर. सो नेट. And the second point is losing access and control over forest resources in the recent years has made them more marginalized economically, socially, culturally and politically. So why I am saying this? Because as far as forest rights importance is concerned, nowadays what we are finding is that these tribals and these communities, they are losing access and control over these resources. Why? Because of too many displacement, too many new projects are being taken up by the state and the corporate world, and the neoliberal agenda of the state also is there. So that is a very important dynamic why forest rights is very important. Then the third point, deprivation of ownership and control over land has also led to psychological loss of one's identity and dignity. Now, why these deprivation that is being taken place from the historical deprivation, it's not the current deprivation, बहुत समय से उनको deprive किया गया है, और उनका जो अधिपत्य है ज़मीन पर, जो हम जंगल ज़मीन की बात करते हैं, वो क्योंकि उनका अधिपत्य नहीं है, जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल जो एक मेंटल जो अटैचमेंट है उससे भी वो एलिनिएट हो रहे हैं. एलिनिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, और वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगी. पहले हम ये डिस्कस कर लें कि क्यों जंगल अधिकार जो है, क्यों जंगल अधिकार, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चौथा पॉइंट है, इन सम एरियाज फॉरेस्ट प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ लैंड विच कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर. अब कुछ एरियाज़ में हम ऐसे समझ सकते हैं जो ये जंगल है, दे एक एडिशनल सोर्स प्रोवाइड करते हैं लैंड के, और इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो. देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ फॉरेस्ट कैरीज विद इट द आइडिया ऑफ कल्चरल कम्युनिटी. जो फॉरेस्ट है उसका पूरा आधार जो है सोशो कल्चरल डायनामिक्स से भी है, और कल्चरल कम्युनिटी का आधार भी ये कैरी करता है. तो उसके संदर्भ में भी जो हम जंगल की हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन द सिक्स्थ पॉइंट इज़ इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. अगर हम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक हम सुशासन या शासन की बात करें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को भी ये इंश्योर करता है. अगर हम जंगल अधिकार की बात करते हैं और जंगल अधिकार को इंश्योर करने की बात करते हैं कि किस तरह से एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है, एक पूरा डेमोक्रेटिक माहौल प्रोवाइड करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. द सेवेंथ पॉइंट इज़ enhancing decentralized mechanisms
अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें या विकेंद्रित आधार की बात करें, तो विकेंद्रित आधार में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का आधार जो 1989-90s में शुरू हुआ, वन पंचायत का आधार, और बहुत सारे स्टेट्स में, उत्तरांचल में और कुछ स्टेट्स में जहाँ पे वन पंचायत जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज कर रहे हैं, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से ट्राइबल्स और स्टेट मिल करके इस तरह के जो पार्टनरशिप करें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये ब्यूरोक्रेट्स का ही सिर्फ आधिपत्य नहीं रहे, और इसमें एक हम जो है पार्टनरशिप करके, जिसे हम जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लोकल एंड स्टेट पार्टनरशिप की हम बात करेंगे, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पीपल्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम जब बात करते हैं मतलब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो किस तरह का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, क्या कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की भी आपने सुना होगा, गांधीयन आइडियोलॉजी में ये ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा होती है। तो अब जब हम पीपल्स मॉडल, पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स फ्रेंडली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, तो हम किस तरह से इसको देखते हैं वो भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। Then the last point which I have written is redistribution. दोबारा से जो हम वितरण करते हैं उसको हम, वो प्रक्रिया जो है हमारी दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हुआ है वो इक्वल नहीं हुआ है, और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। जैसे लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो हम सावरकर, ये विनोबा भावे की आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि हम किस तरह से भूदान आंदोलन और सबको लैंड इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो लैंड के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली ऑफ लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, redistribution of resources which are very important for these local people, for these tribals, for these आदिवासीज़, वनवासीज़, जिस नाम से भी हम इन्हें बुलाएं और हम इन्हें इनको बोलें, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और एक इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग आज हो रही है बहुत हद तक इंक्लूसिव है, लेकिन इंक्लूसिव का जो आधार है वो क्या होगा, उसको वो कंटेस्टेड है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंक्लूजन। Hope students we could understand that why forest rights is important in the contemporary scenario, and when we are looking into the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act FRA, how it is important and how it is being implemented, what are the main provisions of the act, and the other discussions, the academic discussions we can do in the next video. So till then stay connected, and hope if you like this video and understood my points which I am making, do subscribe my channel, like, share and comment. So till then, goodbye and God bless you. Thank you students.